So, welcome students. Let us start with the partial differential equation, the extension of partial differential equation, the last which we have studied in the previous lecture. So, let us start. Today we are going to see the second type of partial differential equation. How the type is? The type is given by f of p, q and z equal to 0. That means the function which consists of p, q and z. How we are going to solve it? So first of all, for solving it, let us consider that f of p, q and z, p, q, z equal to 0. First equation. Just consider the trial solution to be z equal to f of u, where u is equal to x plus ay. Just where a is an arbitrary constant, कुछ भी हो सकता है, just say constant. Now we know that p is equal to da by z by da by x, but z is function of u and u is function of x and y. See carefully what has happened. Z is function of, let me draw something so that you could understand it properly. Z is function of u and u is function of x and y. Therefore, da by z by da by x can be written as da by z by da by u. No, dz by du. The simple reason is here z is directly function of u and u depends on x and y, यानी z सिर्फ और सिर्फ u पे डिपेंड करता है डायरेक्ट डेरिवेटिव एंड u x एंड y पे डिपेंड करता है पार्शियल डेरिवेटिव. समझे? देयरफॉर dz by du into da by u by da by x. समझे? p equal to da by z by da by x, which is equal to dz by du into da by u by da by x. But u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. देयरफॉर इसकी वैल्यू 1. देयरफॉर p इज माफ करना dz by du. p is dz by du. Similarly, q is equal to da by z by da by y. But z is function of, as said, z is function of u and u is function of x and y. Therefore, dz by du into da by u by da by y. But da by u by da by y is a. Therefore, q is equal to a into dz by du. Substituting these values in the given equation 1, we get f of dz by du, comma a into dz by du, comma z is equal to 0. What is this? This is nothing but a ordinary differential equation of first order in z and u. देन हम इसको सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करके इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. एंड द सॉल्यूशन इज सेड टू बी g ऑफ u, a, c, z is equal to 0. What this u, a, c, z? What are these things? u, a, c, z क्या हो सकती है ये? माफ करना, u, a, c, z दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो आर्बिट्री सॉल्यूशन है. वो बाद में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं उसको क्लियर करूंगा. ठीक है? अब सीधा सीधा इसी टाइप से प्रॉब्लम को चलते हैं. व्हाट इज द गिवन प्रॉब्लम इज p इज इक्वल टू p ऑफ p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस q इज इक्वल टू qz. अब देखो ये प्रॉब्लम कैसा है. इस प्रॉब्लम में p भी है, q भी है और z भी है. अब हमारा टाइप जो दिया हुआ है उसी से कंसिडर दिस टू बी इक्वेशन 1. गिवन दैट नाउ द गिवन सॉल्यूशन इज f ऑफ given equation is equation 1 is the given equation is equation 1 and the type is clearly f of p, q, comma z equal to 0. Let z equal to f of u be the given solution. Therefore, u is equal to x plus ay. समझे ना? is the solution of equation 1 where u is x plus ay is the solution of equation 1. ऐसा सपोज सॉल्यूशन है. देन p इज इक्वल टू जो हमने पहले किया था वही, यानी पिछले इक्वेशन का हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. माफ करना,
P is equal to dz by du, q equal to a into dz by du. Similarly, P equal to dz by du, q equal to a into dz by u. One line. Substituting these values in equation 1, we get dz by du in bracket 1 plus dz by du plus dz by a into d is equal to a into dz by du into z. यानी रीशफलिंग द थिंग्स वी गेट. ध्यान से देखना, dz by du 1 plus a into dz by du minus az dz by du इधर ले लिया सब उसको इक्वल टू 0. dz by du कॉमन निकाला, dz by du कॉमन निकाला यानी a प्लस 1 प्लस a इंटू dz by du माइनस az इक्वल टू 0. अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कौन से? या तो dz by du डिफरेंट 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा. लेकिन अगर z 0 हो गया तो इसका सोल्यूशन ही निकल नहीं सकता. इसका मतलब नेचुरली क्या 0 होगा? ब्रैकेट 0 होगा. ब्रैकेट को रीअरेंज कर दिया, a इंटू dz by du प्लस a 1 माइनस az इक्वल टू 0. वेरिएबल सेपरेबल, a इंटू dz by du इज इक्वल टू az माइनस 1. RHS में लेके गए उसको, ये इक्वेशन. फिर सब z एक जगह, सब u एक जगह, वेरिएबल सेपरेबल. अब वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद जरा ध्यान से देखना ये क्या हो गया. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट a अपॉन az माइनस 1 इंटू dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du. अब ये क्या है, मैं इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं इसको खत्म ना करूं, डिनोमिनेटर को खत्म ना करूं. उसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका, ट्राइड टेस्टेड ओके सिंस लॉन्ग टाइम. सब्स्टिट्यूट. भाई जो अड़चन आपको दे रहा है उसी को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. पुट az माइनस 1 इक्वल टू टी. देयरफॉर a इंटू dz इक्वल टू dt. यानी क्या हुआ, इसकी जगह अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो a और dz क्या बन जाएंगे, dt बन जाएंगे. इसका मतलब ये इक्वेशन विल बी dt बाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du. यानी log t इज इक्वल टू u इंटू log c. इसका इंटीग्रेशन u कांस्टेंट लेना है तो log ले लिया. इसका मतलब क्या, log ऑफ az माइनस 1 सब्स्टिट्यूशन का रीसब्स्टिट्यूशन. u कैन बी रिटन एज log e का पावर u. u सामने आ गया, log e और v एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. यानी दिस इज नथिंग, यानी दिस इज एग्जैक्टली दिस इज नथिंग बट कुछ नहीं, 1 है वो, और u क्या करेगा, सामने आ जाएगा. यानी अब देखो ये क्या बना, ध्यान से देखना, log ऑफ az माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ. अब देखो log है लेकिन इन दोनों की क्या है, एडिशन है. तो बेसिकली वो log अगर बाहर लूं तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी. यानी ये होगा, यहाँ पे एक चीज होगी बच्चों, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट चाहिए था तो चीज और क्या आ जाती थी, क्लियर हो जाती थी. जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट. अब वो ब्रैकेट है ऐसा इमेजिन करके चलो. सो log ऑफ az माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ e का पावर u इंटू सी. दोनों का एंटी लॉग लिया तो az माइनस 1 इक्वल टू e का पावर u इंटू सी. सब्सटीट्यूट कर दो u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, तो ये सोल्यूशन होगा az माइनस 1 इक्वल टू e का पावर x प्लस ए वाई इंटू सी. अब जो मैं कहना चाहता था वो ये कि यहां पर u भी होगा, a भी होगा. a कहां से होगा, ये जो a है इसका, वो a भी यहां पर आएगा, ये a. c क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा जो इंटीग्रेशन लेने के बाद निकलेगा. z क्या होगा, अगर पूरा सॉल्यूशन z का ही है तो z तो रहेगा ही रहेगा. इसका मतलब द जनरल सॉल्यूशन इज रिटन एज g ऑफ u जो सॉल्यूशन में का पार्ट है वो, a जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो, c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो, z जिससे ये फंक्शन बना है, जिससे ये प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट हुआ था वो, is equal to 0. This is the type of solution. Just because of that, see carefully, clear. az minus 1 equal to e का पावर x plus ay into c. a आया, z आया, x plus ay मतलब u आया और c भी आया, मतलब पूरी चीजें आ गई.
This is called as the solution of the given differential equation, partial differential equation. Next, समझ में आ गया ना? Next, solve p square plus q square equal to z. The given partial differential equation is p square plus q square equal to z. Equation 1. The given equation is of the type f of p q z equal to 0. Z equal to f of u, where u is equal to x plus ay, जो सोल्यूशन इक्वेशन 1 है वो. ये तो कॉमन है पूरा स्ट्रक्चर. इसका मतलब p equal to dz by du, q equal to a into dz by du. Substituting this in equation 1, we get dz by du का स्क्वायर a into dz by du का स्क्वायर इक्वल टू z. कॉमन सेंस कहता है कि भाई dz ऑफ du कॉमन निकाल लो, तो ये बना स्क्वायर भी निकाल लो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू z, यानी dz by du का होल स्क्वायर इक्वल टू z अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर. नाउ dz by du इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर. ये क्यों किया? रुकना यहीं पर, होल्ड करो, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, ध्यान से देखना. यहां पर देखो, विच इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन z एंड सॉल्विंग वी गेट वॉट एवर द थिंग्स. यानी कुल मिलाकर आपको जो चीज दी हुई है उसको फर्स्ट ऑर्डर में ही रखना है, सेकंड ऑर्डर में ले नहीं जाना है, तो ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. रही बात बाय यूजिंग, हाँ माफ करना, और एक थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा रह गया था. हाँ, एंड आफ्टर सॉल्विंग, ये देखो यहां पर, एंड आफ्टर सॉल्विंग बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब मैं फिर से प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूं. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तभी यूज कर सकता था जब इस स्क्वायर को मैं हटाऊं, इसीलिए हमें क्या लेना पड़ा, इंटीग्रेशन. उसका स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ा हर जगह. सो अब उसको अलग अलग कर दिया. dz बाय अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू du बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर. अब ये 1 प्लस ए स्क्वायर हमारे क्या काम का, हमारे कुछ भी काम का एज इट इज, यानी वो तो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और वो डिफरेंट है. यानी वो अगर कुछ भी आया, देखो बच्चों, वो u में नहीं है ना वो x में है. देखो, अगर यहां पर u स्क्वायर रहता तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू, तो वो फार्मूला बन सकता था. अब नहीं बनेगा. समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है. कौन सा? ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, याद रखो. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट dz बाय अंडर रूट ऑफ z इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू रूट 2 इंटू रूट z. अब 2 इंटू रूट z कैसा? इसका इंटीग्रेशन. कैसा इंटीग्रेशन? रूट z. पापा सीधा सीधा बात है, वो माई 1/2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, z का पावर -1/2 बन जाएगा. इस -1/2 ऊपर जाने के बाद तो उसको -1/2 +1 यानी +1/2 बन जाएगा. इसीलिए रूट z अपॉन आएगा 1/2. अब ये 1/2 ऊपर जाने के बाद 2 आ जाएगा. सो इसीलिए आया 2 रूट z इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्लियर कर देता हूं बच्चों, सो दैट समझने में आसानी जाएगी. इंटीग्रेशन ऑफ डी यू प्लस सी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, बाकी कुछ नहीं. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वी गेट z 2 इंटू रूट z, 2 इंटू रूट z इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू u प्लस सी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर. अब कुछ भी नहीं करना है आपको. अगर सिर्फ ये z का स्क्वायर हटाना है, z हटाना है अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा. ऐसा भी रख दिया तो भी चलेगा. सिर्फ एक काम करना, जहां जहां u है वहां वहां x प्लस ए वाई लिख देना, वही चलेगा. ये भी करेक्ट है. सिर्फ z की जगह u की जगह 1 प्लस एक्स वाई. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सिर्फ u की जगह x प्लस ए वाई लिखना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तीनों में से कोई भी सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन. क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट.
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड। देखना वो प्रॉब्लम हमारा हो गया है। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट टाइप। अब ये नेक्स्ट टाइप कैसी है? टाइप है f1 ऑफ p एंड x, f2 ऑफ q एंड y। यानी देखो p के साथ x, q के साथ y। यानी जो इक्वेशन LHS और RHS में बैलेंस हो, जिसमें LHS में p और x हो और RHS में q एंड y हो, तो उसको कैसे सॉल्व करें? समझे? तो उसको कैसे सॉल्व करें? तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा एक काम करेंगे। लेट दैट इक्वल टू बी एन आर्बिट्री कांस्टेंट, लेट से a, यानी f1 of xp इक्वल टू f2 of yq इज इक्वल टू a। सपोज सॉल्विंग फॉर p, अगर हमने इसको p के लिए सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? देखो p क्या मिलेगा। p के लिए सॉल्व किया तो दिस विल फंक्शन विल बी, इन दोनों को सॉल्व किया तो दिस फंक्शन विल बी p इक्वल टू किस किस का कॉम्बिनेशन? p इक्वल टू x एंड a का कॉम्बिनेशन। सो लेट्स से फाई ऑफ x एंड a। अगर q के लिए सॉल्व किया तो ये होगा फाई y एंड a। यानी p को सॉल्व करोगे तो p को हटा दो, x एंड a बचेगा। q के लिए सॉल्व करोगे तो q को हटा दो, y एंड a बचेगा। Similarly, let z is the function of x and y. Therefore, z is equal dz is equal to dabba z by dabba x into dx, dabba z by dabba y into dy। अब ये क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। ध्यान से देखना इसमें क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। पहले क्या हुआ करता था? z is function of x and y फंक्शन ऑफ t। अगर ऐसा होता तो z इज फंक्शन ऑफ t वाया x एंड y। समझे ना? z इज फंक्शन ऑफ t वाया x एंड y। तो z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dz बाई dt। तो वो होगा डाबा z बाई डाबा x इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी। ऐसा आता था वो। लेकिन इसमें z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y किसी के फंक्शन नहीं है, तो ये t वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसीलिए इस टाइप को डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। तो dz इक्वल टू डाबा z बाई डाबा x इंटू डी एक्स, डाबा z बाई डाबा y इंटू डी वाई। सो dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अरे ये क्या है? ये है dz इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कॉमा ए डी एक्स। पी मतलब क्या? फाई ऑफ एक्स कॉमा ए। क्यू मतलब क्या? फाई ऑफ वाई कॉमा ए डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर? कैसे हो? देखो पहला ही प्रॉब्लम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई। कंबाइन करो उसको। कैसे कंबाइन करोगे? पी स्क्वायर एक्स इधर ले लो, क्यू स्क्वायर उधर ले जाओ। यानी पी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए से। अब पी स्क्वायर सपोज किया, अब पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए, दैट मीन्स पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। व्हाट इज दिस? दिस इज फाई ऑफ एक्स प्लस ए। आगे चलता हूं, क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा अनइजी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए, अगेन कंसिडर किया, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए कंसिडर किया। सो इट विल बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई, क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस वाई। इक्वेशन 3, equation 2, equation 3, substituting the value of p and q in the sample solution. what is sample solution? जो दिया हुआ है वो dz इक्वल टू, इसमें मुझे उसको क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है। ठीक, क्लियर? अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है तो वो dz इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स अंडर रूट ऑफ वाई प्लस ए डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट dz इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dz, इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए का पावर 1 बाई 2 dx, y प्लस ए का पावर 1 बाई 2 dy। इंटीग्रेशन लेने के बाद z इक्वल टू एक्स प्लस ए का 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2
y प्लस ए का 3/2 सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, प्लस सी, यानी सोल्यूशन विल बी 2/3 x प्लस ए का 3/2 2/3 y प्लस ए का 3/2 प्लस सी, फिनिश, कंप्लीट सोल्यूशन। सेकंड प्रॉब्लम, इसको भी क्लियर कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट ऑफ q इक्वल टू 2x, गिवन इक्वेशन इज अंडर रूट ऑफ p अंडर रूट ऑफ q इक्वल टू tx। ले लो एक साइड, RHS अगर ये कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, y ना हो तो भी चलेगा। सेम प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा अलग वे से, देखो उसको भी ट्राई करना। यानी f1 ऑफ px f2 ऑफ qy, क्लियर कर रहा हूं बच्चों। So under root of p minus 2x equal to under root of q equal to a, under root of p minus 2x equal to a, under root of p equal to x 2x plus 2x minus a। समझे ना क्या हुआ है, 2x वहां पे चला गया। आर यू गेटिंग दिस? क्या हो गया, 2x इधर चला गया, आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये प्रिंट थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको ये। सो दिस इज a माइनस 2x, वैसा भी लिया तो चलता, 2x माइनस, ऐसा भी लिया तो चलता, क्यों मैं बताऊंगा बाद में। p इक्वल टू 2x माइनस a का होल स्क्वायर। अब व्हाट इज दिस, अगर मैं इसका स्क्वायर ही करने वाला हूं तो a माइनस 2x हुआ तो क्या, या 2x माइनस a हुआ तो क्या। सिंपल रीजन, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर एंड b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, 2x माइनस a का होल स्क्वायर लिखा है। अंडरस्टूड? दैट मीन्स q under root of q equal to a, that means q equal to a square। Substituting these values we get dz equal to 2x minus a का whole square into dx a square dy। Integrating both sides we get 2x minus a का cube by 3 into इंटीग्रेशन, इसका 2 है ना साथ में, इसीलिए into 2 प्लस a स्क्वायर y, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, प्लस c। जो मैं प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं वो अब यहां देखना, इस 2x की जगह 2y कंसीडर करना, 2x की जगह क्या कंसीडर करना, 2y कंसीडर करना, विषय वहीं क्लियर कर देना। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो यहीं तक है वो, आगे बढ़ता हूं। ये सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन मैं आपको ये प्रॉब्लम आधा समझाऊंगा, बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, ये प्रैक्टिस के लिए ले लो आप, मैं आधा समझा दूंगा। q इक्वल टू एक्स वाई पी स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है, q इक्वल टू एक्स वाई पी स्क्वायर, दैट मीन्स q बाय वाई इक्वल टू एक्स इंटू पी स्क्वायर, फिनिश। तो q बाय वाई एक्स इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू a, कंसिडर, दैट मीन्स q बाय वाई इक्वल टू a, दैट मीन्स q इक्वल टू a वाई, x इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू a, पी स्क्वायर इक्वल टू a बाई एक्स, p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाई एक्स। सब्सटीट्यूट कर दो और इंटीग्रेशन ले लो, आसान इंटीग्रेशन है इसीलिए आपको लेने के लिए बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना है, समझा दे रहा हूं आधे से, ध्यान से देखो, प्रॉब्लम बड़ा आसान है, आसान इंटीग्रेशन है इसलिए। p इंटू ई का पावर y, q इंटू ई का पावर x, e का पावर x इधर ले लो, e का पावर y इधर ले लो, तो p इंटू ई का पावर माइनस एक्स, q इंटू ई का पावर माइनस वाई, p इंटू ई का पावर माइनस एक्स, q इंटू ई का पावर माइनस वाई से इक्वल टू a। तो p इंटू ई का पावर माइनस एक्स इक्वल टू a, दैट मीन्स p इक्वल टू a इंटू ई का पावर x, q इक्वल टू a इंटू ई का पावर y। सिंस z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, dz इक्वल टू a इंटू ई का पावर x dx, a इंटू ई का पावर y dy। अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, वो भी आप आराम से ले सकते हो, इसीलिए ये भी प्रॉब्लम आपको क्या करना है, खुद होके सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? अब ये भी प्रॉब्लम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, क्षमा प्राप्त हूं, ये प्रॉब्लम अब मैं कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको, ये लास्ट वाला कंप्लीट आपको ही प्रैक्टिस करनी है। पी स्क्वायर वाई अंडर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ये बड़ा आसान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्यू बाय वाई, इंटीग्रेशन ही लेना है, बड़ा आसान है, आराम से ट्राई करो, ये आपको ही करना है। क्लियर हुआ? ठीक, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है। सो आई विल स्टॉप हियर ओनली, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।